students. Today we'll discuss the topic what makes India a federal country. It means now we will discuss about the federal system in the Indian context. In the earlier classes we had discussed about the basic concepts like features, types of federal system. Now how federal system works in India. So what are the constitutional provisions of the federal system of India? So as you know that federal system is about division of powers. So अगर हमें फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश करना है तो पावर्स को डिवाइड करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी पावर गवर्नमेंट की होती है to make laws for the country, to make policies for the country. So the division of power between various governments like central government and state government. So अगर division of power if we want to ensure, then first we have to divide the law making subjects, यानी कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा, अदरवाइज देर विल बी अ बिग फ्रिक्शन. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो इस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए द सब्जेक्ट्स वर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. सो the division of law making subjects are in three categories. थ्री कैटेगरीज में है, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट. यूनियन लिस्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेंटर. सो जो पूरे कंट्री से रिलेटेड द सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दे फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट. सो यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, जो पूरी कंट्री को अफेक्ट करते हैं. देन वी टॉक अबाउट द स्टेट लिस्ट. इट मीन्स विच आर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक कोई भी गवर्नमेंट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी लॉ मेकिंग सब्जेक्ट है दैट फॉल्स इन स्टेट लिस्ट. एंड कंकरेंट लिस्ट इट मीन्स दैट जो दोनों ही इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए भी ज़रूरी है और स्टेट के लिए भी ज़रूरी है कि वो उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाए. सो विच आर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट. सो सच subjects falls under the list of concurrent. So these are the three law making categories in which all the subjects are divided. Apart from this, one more is residuary parts. It means कि जैसे जैसे circumstances change होते हैं, टाइम चेंज होता है, तो कुछ न्यू सब्जेक्ट्स अराइज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड circumstances. So such subjects comes under the residuary parts. और residuary parts में powers है सेंटर को लॉ बनाने की. सेंटर will make law on the residuary part. Then other two features like role of judiciary. As you know हमने features में पढ़ा था कि judiciary का रोल सबसे ज़्यादा crucial है और Indian context में this is the reason that we made our judiciary that much strong that it can able to solve the conflicts between center and state. And finally amendment power भी हमने features में पढ़ा था that Indian context में भी amendment powers are given to both center and state. Otherwise state का कोई power कोई नहीं होती, तो state को भी power देना ज़रूरी था. सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हम सेंटर्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं. सो वी वांट द रोल ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट. सो क्लास these are the few keywords that you need to take care while answering that what makes India a federal country. So ये keywords आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स का डिविजन किस तरह से हुआ है, कौन सी थ्री कैटेगरीज हैं. Then you need to take care the other factors like the role of judiciary and the amendment power. Now these keywords को अब हम detailed way में through PPT we will discuss, point wise we will discuss. So thank you class. Students will continue with our topic what makes India a federal country. So as we had discussed about the division of parts, so now we will discuss that in detail. So the constitution declared India as a union of states. As you know our federation is the holding together federation. So this is the reason we didn't use the word federation, because federation का जो real meaning होता है that is equal division of power. सो दिस इज़ द रीज़न कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे दे अवॉइड
दे अवॉइडेड यूजिंग दिस वर्ड फेडरेशन, क्योंकि उन्होंने रियल स्पिरिट्स में फेडरेशन स्टार्ट नहीं किया था. अगर रियल स्पिरिट में होता तो वो कमिंग टुगेदर होता. सो होल्डिंग टुगेदर, federation says that states will not be given equal power as compared to the center. So this is the reason that we call our federation as the union of states, जो ये indicate करता है कि center will be more powerful. Now, the constitution originally provided for a two-tier system of government. Two-tier, originally जब constitution बना था, at that time there were only two levels of government, center and state. और जो हमने पहले बात करी थी कि हमारे इंडिया में 3-tier सिस्टम है, तो जो ये थर्ड लेवल है, ये थर्ड लेवल वॉज इंक्लूडेड लेटर, ये बाद में आया थ्रू एन अमेंडमेंट. ये अमेंडमेंट के थ्रू थर्ड लेवल आया. थर्ड लेवल दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थर्ड लेवल है, इट केम लेटर. इट वॉज नॉट इनिशियली इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था तब ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. सो a third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities in the it was added later in the year 1992. ये हम पढ़ेंगे डिटेल में 1992 में कैसे कब हुआ. Now class, next is the threefold distribution of power, जो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. सो दीज आर द थ्री लिस्ट. ये थ्री लिस्ट क्यों बनाई गई है? सो दैट कि लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स में आपस में सेंटर स्टेट के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट और कोई भी इशू अराइज नहीं हो. सो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे कि आप ये सब्जेक्ट्स देख सकते हो, लाइक डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन. तो आप लोगों को देख के ही पता चल सकता है कि डिफेंस ऐसा मैटर है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ है. तो इससे रिलेटेड जो भी लॉ बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ नहीं बनाएगी. देन इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टेट लिस्ट जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रोल प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्टेट का मैटर है, स्टेट उसको हैंडल करेगी. फॉर एग्जांपल पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर. एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा? तो पुलिस से रिलेटेड जो भी लॉ बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी. देन ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरीगेशन. सो दीज आर द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट. अब आ जाते हैं कंकरेंट लिस्ट, जो कि दोनों के लिए ज़रूरी है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो उन पे लॉ बनाए. वो अकेले स्टेट पर भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन अकेले उस पावर को हम सेंटर को भी नहीं दे सकते. इट नीड्स दैट बोथ विल प्ले देयर रोल इक्वली. बट यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, द कंकरेंट लिस्ट, इफ देयर विल बी एनी कन्फ्लिक्ट अराइजेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, देन द लॉ मेड बाय सेंटर will be continued, it will prevail. सो कौन सा लॉ कंटिन्यू रहेगा, कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? सपोज सेंटर ने बना लिया, स्टेट ने भी बना लिया, तो स्टेट अब सेंटर के लॉ को अगर डिनाई करता है तो ये इट इज़ क्लियरली मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ बोथ हैड मेड द लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स, देन फाइनल डिसीजन विल बी दैट सेंट्रल लॉ विल बी एक्सेप्टेड. सेंटर के बनाए हुए लॉ को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर स्टेट का लॉ उस केस में एक्सेप्ट नहीं होगा. सो द सब्जेक्ट्स आर लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन. सो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच आर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट. अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, लाइक एजुकेशन, आप लोगों को सबको पता है दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन बोर्ड्स इन इंडिया. CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, देन स्टेट बोर्ड्स. जैसे आप यू आर लिविंग इन राजस्थान, आपने सुना होगा राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम्स कब होते हैं. राजस्थान बोर्ड का करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट होता है. राजस्थान बोर्ड का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है CBSE बोर्ड से. तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में सब जगह अपने अपने एजुकेशन बोर्ड्स हैं.
तो ये एग्जाम्पल से हमको पता चल रहा है कि इवन एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं। आरबीएसई फॉर एग्जांपल राजस्थान की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आरबीएसई बोर्ड वो राजस्थान गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर करती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी रूल्स पॉलिसी कुछ भी बनना है आरबीएसई बोर्ड से तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी ना। व्हाट इज दिस डिफरेंस, कि ये डिफरेंस ऐसा क्यों कि अलग अलग एजुकेशन बोर्ड्स। तो ये कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को इसीलिए इंक्लूड किया ताकि स्टेट्स को कहीं ये फील नहीं हो कि, क्योंकि स्टेट बनते क्यों, सो दैट दे कैन एबल टू रिटेन देयर लैंग्वेज देयर कल्चर। तो अगर पर्टिकुलर स्टेट ने अपनी लैंग्वेज और कल्चर को एजुकेशन में अगर इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि इट्स अप टू द पेरेंट्स कि अगर वो चाहते हैं कि उनका जो लोकल डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेजेस को वो चाहते हैं कि आगे डेवलप हो और बच्चे उसको पढ़ें, तो दे विल ऑप्ट फॉर आरबीएसई। बट जिनको अगर लोकल लैंग्वेजेस में नहीं है इंटरेस्ट तो दे कैन गो फॉर सीबीएसई। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने करिकुलम में क्या इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ में जो स्टेट्स हैं तो वहाँ पे उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं साउथ की, तेलुगु, मलयालम, तो और उनका जो कल्चर है वहाँ के करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है। आरबीएसई में राजस्थान के कल्चर को इंक्लूड किया जाएगा। तो एजुकेशन में सो दैट कि स्टेट विल नॉट फील एलिनिएटेड कि उनके कल्चर को आगे। बट अगर हमने सीबीएसई बोर्ड में, उन लोगों के लिए बेटर है जिनके ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, तो ट्रांसफ़र्स अगर होते रहेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि राजस्थान में करिकुलम क्या है, कर्नाटक में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, तो दे विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सीबीएसई में क्या होता है, यूनिफॉर्म सिलेबस होता है, एक जैसा सिलेबस पूरे कंट्री में। और अगर हम बात करें स्टेट बोर्ड्स की, तो स्टेट बोर्ड्स का जो करिकुलम उनके स्टेट के कल्चर पे बेस्ड होता है, वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है स्टेट की लैंग्वेज, स्टेट के कल्चर। तो दोनों के लिए, सेंटर के लिए भी ये ज़रूरी था कि सीबीएसई बोर्ड हो, जाके जिनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, जो ट्रांसफरेबल जॉब्स में जिनका मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो यूनिफॉर्मिटी जिनको चाहिए, जिनकी प्रेफरेंस है, दे कैन गो फॉर सीबीएसई। बट दोज who give preference to their local culture, local language, they go for RBSC. So the citizens have choice related to education. तो अब citizens को दोनों choice मिल गई. Same case is related to other subjects. तो concurrent list में law will be made by both center and state, दोनों law बनाएंगे, और if there will be any conflict, then the law made by center will prevail. So apart from this now students, next is residuary parts. जैसा मैंने आपको पहले फ्लो चार्ट में बताया था that residuary parts, it contain those subjects which do not fall in any of the list and come up after the constitution was made. यानी ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए। 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन हुए थे, एट दैट टाइम कंप्यूटर्स वर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। तो कंप्यूटर रिलेटेड जो भी लॉ बनने थे, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी लॉ बनने थे, वो तो उस समय बन नहीं सकते थे। तो ऐसे इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आईटी सेक्टर और अबाउट कंप्यूटर, देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट्स नाउ आफ्टर 70 ईयर्स, मोर देन 70 ईयर्स। तो अब कई ऐसे इश्यूज़ हैं, कई ऐसे नए चैलेंजेस हैं जो अराइज हुए हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पर अब लॉ कौन बनाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि न्यूली अराइज सब्जेक्ट्स पर जो बाय द टाइम धीरे धीरे अब अराइज हुए हैं, तो उनको कौन लुक आफ्टर करेगा। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस कैटेगरी वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था, दे वर अवेयर दैट इन फ्यूचर सम न्यू सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो अराइज। तो who will make the law? So this is the reason they have included this residuary parts. Residuary means जो बची हुई है, तो बचे हुए जो नए सब्जेक्ट्स हैं तो उन पर लॉ कौन बनाएगा, सेंटर. So here you need to take care, this is an important one marker question, that who makes law for the residuary subjects. It is the central government that makes law. So residuary subjects में states are not given any powers, सेंटर की पावर है। तो ये पता चलता है हमारे यहाँ सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग है स्टेट के कंपैरिजन में। ये एक एग्जांपल है कि कैसे सेंटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टेट की पावर कम है। सो रेसिड्यूरी पावर्स, सब्जेक्ट्स
were under the power of central government. Now next is, हमने पढ़ा था होल्डिंग टुगेदर में, that in holding together federation states enjoy unequal powers. सबकी पावर्स अनइक्वल होती है. तब मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अनइक्वल क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटीज़, कि अलग अलग स्टेट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग. सो कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिला होता है, स्पेशल प्रिविलेजेस मिले होते हैं. लाइक मैंने आपको बताया था हिली एरियाज़ में स्पेशल पैकेजेस दिए जाते हैं क्योंकि उनकी जोग्राफिकल कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है. पास्ट में JNK में भी आर्टिकल 370 एक स्पेशल प्रोविजन था, ऑल्दो अब नहीं है, लेकिन पास्ट में बहुत टाइम तक वो था. नाउ इन दिस वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द यूनियन टेरिटरीज, कि यूनियन टेरिटरीज का भी कुछ डिफरेंट सिस्टम है. तो इसलिए इन ऑन सच बेसिस वी कैन से कि आर फेडरल सिस्टम एज इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर. सो हेयर स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स. जितने भी स्टेट्स हैं सब इक्वल पोजीशन में इंडिया में नहीं हैं, लाइक यूनियन टेरिटरीज. सो यूनियन टेरिटरीज एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स इंजॉय अ वेरी लिटिल पावर. दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में यूनियन टेरिटरीज की पावर बहुत कम है. कम क्यों है? Now the reason is given here that these are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. तो ये ऐसे areas हैं जो ना तो हम किसी state के साथ merge कर सकते हैं और इतने ज़्यादा छोटे भी हैं, that too small to become an independent, हम कोई independent states भी नहीं बना सकते. So this is the reason we made a डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज़ यूनियन टेरिटरीज. अब यूनियन टेरिटरीज में ये इतने छोटे स्टेट तो बन नहीं सकते और किसी इनका अपना एक डिफरेंट कल्चर है, अलग ही इनका कल्चर है, इनकी जोग्राफी थोड़ी सी अलग है. तो इस वजह से हम किसी और स्टेट के साथ इसको मिक्स भी नहीं कर सकते. लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर हुए हैं. सो these territories do not have the powers of a state. इनके पास स्टेट जैसी पावर्स नहीं है, थोड़ी सी कम है पावर्स. तो दे हैव सर्टेन इंटरफेरेंसेस. इनके सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर डोमिनेटिंग इन दीज टेरिटरीज. सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज. सो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? स्टेट के पास पावर ज़्यादा होती है, वाइल यूनियन टेरिटरीज दे हैव द इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रन करने में एक मेजर रोल प्ले करती है. देन अमेंडमेंट पावर, ये हमने फीचर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट फेडरल सिस्टम में ज़रूरी है दैट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की पावर, दैट इज़ नोन एज अमेंडमेंट पावर. तो it is required in the federal system that amendment power should be given to both center and state. Both should have role in changing the constitution. So हमारे constitution ने ये चीज़ ensure करी है. So in our constitution, if any change has taken place, then it has to be first passed by both the houses of parliament. दोनों houses पार्लियामेंट के उसको पास करेंगे विथ 2/3 मेजॉरिटी. देन इट हैज़ टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. दिस इज़ द प्रोसीजर. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन अबाउट द अमेंडमेंट पावर. देन यू हैव टू टेल कि अमेंडमेंट अगर करना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, पहले वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा. फिर अगर चेंज करना है तो नॉट जस्ट इट इज़ रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ 2 हाउसेस. अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं तो उन स्टेट्स में एटलीस्ट टोटल स्टेट्स के जो हाफ हैं उनसे तो रैटिफिकेशन चाहिए. सो इंडिया के जितने भी टोटल स्टेट्स हैं तो उनसे हाफ स्टेट्स को अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी. अगर हाफ ने दे दी तो फिर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हो सकता. सो amendment power also makes our federal system very strong. Then role of judiciary. There's a very important, very effective role
judiciary plays in our federal system. So if any kind of dispute about the division of power, union list, residuary, concurrent list, अगर कोई भी dispute आता है, then the High Court and the Supreme Court will make a decision. Then apart from this, union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. So resources generate करने के लिए they have the power to impose taxes. So taxes power central government, union government दोनों के पास है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ union के पास है, state government can also levy taxes. So this is about the constitutional provisions of the federal system of India. So India में constitutional क्या system है, कैसे division of power है, amendment कैसे होता है, judiciary क्या role play करती है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का कैसा रोल है. तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. सो अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर डिस्कस्ड कि फेडरल सिस्टम इंडिया में कैसे इस्टेब्लिश हुआ है. और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है. रूल्स बन जाते हैं, क्लास के भी रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको प्रैक्टिस कैसे हो रहा है, स्टूडेंट्स कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंस लेके आ जाती हैं कि रूल्स क्या है और इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या हो गया. सो अब हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एस्टैब्लिश होने के बाद प्रैक्टिकली उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, प्रैक्टिकली अब क्या नया हुआ हमारे फेडरल सिस्टम में. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दैट.